Good morning, students. So today we'll start the time and distance related problem. So first of all, just write the formula between time, distance, and speed. So that is a basic formula. Speed equal to distance upon time. So this is the basic formula. इसी फॉर्मूले को आप अलग अलग रोटेट करके भी लिख सकते हैं. So you can write distance equal to speed into time. I am audible, na? Yes, sir. Okay. Yes, Yes, sir. sir. Distance equal to speed into time. And if you want to find time, then formula of time is nothing but distance upon speed. Understood? तो इसी फॉर्मूले को हम लोग अलग अलग वे में लिख दिए. तो जो भी फाइंड आउट करने का उसके अकॉर्डिंग हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे. ओके, so unit of distance either kilometer or meter. Unit of time either hours or second. And unit of speed either kilometer per hour or meter per second. Okay, so now I will write the conversion between them. So suppose that 1 kilometer is nothing but 1000 meter. 1 hour is equal to 60 minutes into 60 seconds. So finally 60 into 60 seconds. Okay. Screenshot करवा man. So according to that you can write, suppose that the unit of speed is given in terms of kilometer per hour. जा भाई काम करवा कर ले. Please don't disturb the class. Mute yourself. Unit of speed. Suppose that kilometer per hour is given. So how to convert into the meter per second? So kilometer per hour. 1 kilometer can be written as 1000 meter, and 1 hour equal to 60 into 60 seconds. So finally we can write, after simplified this expression, we will get 1000 upon 60 into 60, 18 upon 5 upon 18 meter per second. So finally we can say 1 kilometer per hour is nothing but 5 by 18 meter per second. For an example, suppose that speed is given equal to 70 kilometer per hour, and you want to convert this speed in meter per second. So just multiply by 5 by 18, and this is nothing but meter per second. Understood? So after simplification of this expression, we will get, yes, can you able to tell me what is the value? So 18 in 4 is 72. So finally we will get 20 meter per second. तो होप सो कि आपको समझा रहेगा कि किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करना. And second example number 2, suppose that speed is given 20 meter per second and you want to convert in kilometer per hour. So just multiply by 18 by 5, and this will be kilometer per hour. So finally we will get 72 kilometer per hour. So अगर आपके पास मीटर पर सेकंड में दिया है तो आप किलोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड किलोमीटर पर सेकंड पर आवर में दिया है तो आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं. Okay, so this is the basic formula. Speed equal to distance upon time, and distance equal to speed into time, and time equal to distance upon speed.
one another concept is, are you interested to write all this thing, Yes, sir. friends? Yes, sir. Yes, if you are interested to write, then write. I will give 2 to 5 minutes. Okay. Yes, write all these things because these are the basic things. Numerical solve करने पे ये use होगा. Okay, so now another concept related to speed, that is called as the average speed. So what is the meaning of average speed? So formula of average speed is nothing but total distance covered by object, the whole divide total time taken by offset. Okay, let's see some one basic example. Suppose that this is your distance A to B, and object, I mean automobile, take a time t equal to 20 seconds to cover this distance AB, and this distance is nothing but 40 meter, and another journey again start from B to C, and then time taken is a 10 second, and distance equal to 50 मीटर. पहले वाले जर्नी में आपने देखा रहेगा कि इसमें टाइम ज्यादा लगेगा. एंड सपोज वापस उसने C to D अगर डिस्टेंस कवर किया और इसमें उसने डिस्टेंस सपोज दैट 60 कवर करता है एंड टाइम का वैल्यू 20 सेकेंड. तो इफ यू वांट टू कैलकुलेट एवरेज स्पीड, अगर आपको इंडिविजुअल स्पीड कैलकुलेट करना है, सपोज दैट स्पीड A to B के बीच में उसने कितना स्पीड यूज किया है, तो उसका फॉर्मूला आप निकालेंगे तो 40/20, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड. ओके, और अगर सपोज अनदर जर्नी जो लिखा है दैट इज अ VBC, B to C के लिए उसने कितना स्पीड यूज किया रहेगा, दैट इज 50/10, so that is 5 मीटर पर सेकेंड. एंड C to D, तो इसके लिए जो इसने स्पीड यूज किया दैट इज 60/20, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड. एंड सपोज यू वांट टू कैलकुलेट एवरेज स्पीड, तो Sir, एवरेज it's 3 meter per second. 3 Sorry. meter per second. अगर if you want to calculate average speed, then you have to calculate total distance. So total distance, tell me the total distance, that is 40 plus 50 plus 60, finally 150 meter, and total time, this is equal to 20 plus 10 plus 20, 50. that will be the 50 second, and finally average speed equal to 30 meter per second. yes, according to formula, that is total distance divided by total time. So 150 is the total distance, 5 is the total time, so finally 3 meter per second. होप सो कि आपको ये क्वेश्चन समझा रहेगा. तो बेसिकली आपको ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला नोट डाउन करना है, तो आप इसको नोट डाउन करो, दैट इज अ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. ओके, और ये एग्जांपल भी आप नोट डाउन कर लें. Okay, so let's see another concept of speed, that is called as relative speed. So another concept is relative speed. So if two objects
move to each other. I mean, suppose that this is your object 1 and the velocity of object 1 is suppose that u, and second object the velocity is v, और ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. So now first concept is two objects in opposite direction, then relative speed is, क्या होगा relative speed? तो suppose that first वाले का speed u है या फिर v1 ले लेते हैं and second वाले का v2 ले लेते हैं and क्वेश्चन में इनके वैल्यूज के अकॉर्डिंग पता चला कि v1 is greater than v2. हालांकि उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. रिलेटिव स्पीड इक्वल टू, दोनों को एडिशन करेंगे दैट इज v1 प्लस v2. ओके. सेकेंड कंसेप्ट, सपोज दैट सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे तो उसका रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा? If two objects move in same direction, then relative speed is, पहले वाले ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी सपोज दैट v1, सेकेंड वाले का वेलोसिटी v. यहाँ पे v1 और v2 में कौन बड़ा है वो मैटर करेगा, बिकॉज हम लोग उसमें से ही सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं. तो रिलेटिव स्पीड इक्वल टू, इफ v1 is greater than v2 then answer will be v1 minus v2. If v1 is greater than v2 and suppose that is v2 is greater than v1, then answer will be v2 minus v1. Understood? So this is the concept of relative speed. Okay, so आप इसको भी नोट डाउन कर लें. Now let's discuss the problem based on related to train. मोस्टली ट्रेन से रिलेटेड और बोर्ड से रिलेटेड न्यूमेरिकल आते हैं तो क्या सिनेरियो क्रिएट होता है. तो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेन, उसमें क्या क्या केसेस फॉर्म होते हैं. केस 1, व्हेन द ट्रेन passes a stationary point. Stationary point means what? कि suppose that प्लेटफॉर्म पे एक बॉय खड़ा है, उसको अगर ट्रेन क्रॉस करने के लिए कितना टाइम लगेगा, क्या क्या कंसेप्ट आएगा. व्हेन द ट्रेन passes a stationary point, यानी कि प्लेटफॉर्म के ऊपर एक बॉय है या गर्ल है व्हाटएवर, देन टोटल डिस्टेंस कितना कवर होगा पूरे जर्नी में, एंड व्हाट इज द टाइम, ये दोनों लिखेंगे. तो डिस्टेंस then distance covered by train is nothing but length of train. And time taken by train equal to length of train divided by speed of train. Understood? इसके अंदर दूसरा केस हम लोग बनाते हैं. सपोज दैट अभी हम लोगों ने बोला स्टेशनरी पॉइंट, बट सपोज दैट पॉइंट इज आल्सो मूविंग.
and with velocity is u. तो इस सिचुएशन में क्या होगा? Bus is a moving point with velocity, suppose that u है moving point का velocity, understood? Then distance covered by train equal to length of train. अब उसमें भी डिपेंड करता है कि ये मूविंग पॉइंट किधर है, अपोजिट डायरेक्शन में है या सेम डायरेक्शन। तो मैं फिलहाल यहाँ सेम डायरेक्शन लिखता हूँ। आई मीन जो ट्रेन का डायरेक्शन है वही डायरेक्शन मूविंग पॉइंट का भी है, ठीक है? मतलब ट्रेन का डायरेक्शन, ट्रेन के मूव करने का डायरेक्शन एंड वॉइस का डायरेक्शन बोथ आर सेम। और इसका अगर सपोज दैट वेलोसिटी सपोज हम लोग v कंसीडर करते हैं और इसको u, तो यहाँ पे फॉर्मूला आ जाएगा v माइनस u, बिकॉज रिलेटिव वेलोसिटी के अकॉर्डिंग रिलेटिव स्पीड इज नथिंग बट v माइनस u। और यहाँ पे हम लोग ये डिस्टेंस नहीं है, माय मिस्टेक, जस्ट अ सेकंड, डिस्टेंस तो इतना ही होगा। टाइम, तो टाइम का जो फॉर्मूला लिखेंगे, टाइम इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन डिवाइड बाय रिलेटिव स्पीड आएगा इसका, बिकॉज बोथ पॉइंट इज मूविंग, राइट ना? बोथ ट्रेन एंड बॉयज बोथ आर मूविंग, therefore you have to use the relative velocity, यानी फॉर्मूला इज टाइम इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन डिवाइड बाय रिलेटिव स्पीड, एंड लेंथ ऑफ ट्रेन जो भी रहेगा और रिलेटिव स्पीड मैंने ऑलरेडी यहाँ कैलकुलेट करके दिया। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है अगर ये सेम डायरेक्शन में है तो इसको मैं यहाँ पे फर्स्ट पार्ट लिखता हूँ इन सेम डायरेक्शन, पार्ट ए, एंड सेकेंड यहाँ पे हम लोग कंसिडर करेंगे इन अपोजिट डायरेक्शन। तो केस 2 का ये सेकेंड पार्ट है। तो सपोज दैट दिस इज अ ट्रेन एंड वेलोसिटी इज v और जो पॉइंट है उसका वेलोसिटी u। तो ऐसे केस में जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा v प्लस u, एंड देन टाइम का फॉर्मूला इज लेंथ ऑफ ट्रेन डिवाइड बाय once again same formula relative velocity, और यहाँ पे लेंथ ऑफ ट्रेन सपोज l है तो ये हो जाएगा v प्लस u। और अगर सपोज दैट यहाँ पे लेंथ ऑफ ट्रेन उसको भी हम लोग l पकड़ के चलते हैं, तो ऐसे केस में यहाँ पे l अपॉन v माइनस u। तो ये सेम डायरेक्शन के लिए फॉर्मूला है या अपोजिट डायरेक्शन के लिए फॉर्मूला, राइट? नेक्स्ट केस 3। अभी तक हम लोग एक ट्रेन और एक स्टेशनरी पॉइंट, फिर ट्रेन एंड मूविंग पॉइंट। मूविंग पॉइंट में भी देयर आर टू पॉसिबिलिटी, मूविंग पॉइंट इन मूव इन द सेम डायरेक्शन, आई मीन डायरेक्शन ऑफ द ट्रेन, एंड अपोजिट टू द ट्रेन। तो इन सिचुएशन में क्या क्या केसेस बनेंगे वो मैंने आपको लिख के दिया। अभी नेक्स्ट केस आएगा, सपोज दैट टू ट्रेन का क्वेश्चन है, या फिर ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच में अगर हम लोग क्वेश्चन डिजाइन करेंगे तो क्या होगा? इफ द ट्रेन पासिंग द प्लेटफॉर्म, या फिर कभी कभी वो लोग ब्रिज के बारे में बोलते हैं, देन डिस्टेंस covered by
train equal to length of train plus length of either platform और ब्रिज, जो भी क्वेश्चन में मेंशन किया है, एंड टाइम डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन, क्योंकि आपने देखा यहाँ पर, एंड डिवाइड बाय स्पीड ऑफ ट्रेन। ओके, तो डिस्टेंस एंड टाइम दोनों का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा। तो ये ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच का रिलेशन। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या आ सकता है कि सपोज दैट देयर आर टू ट्रेन, तो ऐसे केस में दो दो पॉसिबिलिटी आएगा। टू ट्रेन में आइदर मूव टुगेदर, आई मीन इन सेम डायरेक्शन, या इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, इसको चाहिए तो और प्रॉपर तरीके से मैं बता देता हूं। सपोज दैट दिस इज द लेंथ ऑफ ट्रेन, और यहां से प्लेटफॉर्म स्टार्ट हो रहा है, सपोज दैट, राइट। तो ये आपका लेंथ ऑफ ट्रेन और ये प्लेटफॉर्म, तो टोटल डिस्टेंस यहां से यहां तक हो गया। आपको समझ रहा है, इसलिए दोनों को ऐड किया है। ओके, सो नेक्स्ट पॉसिबिलिटी, इफ टू ट्रेन pass each other, और इसमें भी केसेस आएगा, ब्रैकेट में लिख देता हूं, ट्रेवलिंग इन सेम डायरेक्शन, देन डिस्टेंस इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन 1 प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन 2, एंड रिलेटिव वेलोसिटी, आई मीन रिलेटिव स्पीड, बोथ आर इन सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो v1 माइनस v2 if v1 is greater than v2, and then time का फॉर्मूला इज डिस्टेंस जो आपने देखा ऊपर, एंड रिलेटिव स्पीड। यानी कि L1 प्लस L2, लेंथ ऑफ ट्रेन 1 ट्रेन 2 एंड डिफरेंस बिटवीन देम, बट डिपेंड कि v1 इज ग्रेटर देन v2 है। if v2 is greater than v1 then formula v2 minus v1 होगा। ओके, सो नेक्स्ट केस बनाते हैं, केस 4 में, if two trains pass each other traveling in opposite direction, in bracket traveling in opposite direction, then distance का formula, once again length of train 1 train 2 and then relative velocity, I mean relative speed, equal to v1 plus v2 and time equal to distance upon relative speed. This is equal to L1 plus L2 divided by v1 plus v2. Understood? So first of all, write all this thing and then we will discuss another concept, I mean problem related to boat and river. So let's discuss the another concept, that is problem based on boat and river.
Okay. So suppose that the velocity of boat, let speed of boat is u and speed of stream, or you can say current. So that will be, suppose that इसको लिख देते हैं हम लोग v. Okay. So once again there are two cases. अब there are two object, boat and current, I mean stream. तो ऐसे केस में आपको रिलेटिव वेलोसिटी यूज करना है. तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी आएगा, अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम. तो अप स्ट्रीम का वेलोसिटी क्या होगा, स्पीड ऑफ बोट, ये जो स्पीड है वो इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ बोट अप स्ट्रीम, यानी अपोजिट टू द स्ट्रीम. अप स्ट्रीम मतलब अपोजिट टू द स्ट्रीम. सो इन द, अभी अपोजिट है, इसका मतलब क्या होगा, इसमें उसको अपोज करेगा वो, तो फाइनली u माइनस v. अंडरस्टूड. यानी स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम. एंड सेकेंड केस, डाउन स्ट्रीम. डाउन स्ट्रीम मतलब इन सेम डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में रिवर का डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में बोट भी मूव कर रही है. ऐसे केस में दोनों वेलोसिटी ऐड हो जाएगा. ये तो आपको समझ में भी आ रहा होगा. कभी कभी क्वेश्चन में कैसा करता है, ये डायरेक्टली आंसर दे देता है. ये सेकेंड पार्ट में यहाँ पे बताता हूँ, जस्ट अ सेकेंड. यस, हाँ. तो ये एक फर्स्ट पार्ट हो गया. सेकेंड पार्ट, सपोज दैट उसने स्पीड ऑफ बोट दिया है अप स्ट्रीम, ऑलरेडी गिवन है स्पीड ऑफ बोट अप स्ट्रीम. सपोज दैट दिस इज गिवन. इसको मैं ले लेता हूं u अप स्ट्रीम के लिए p वर्ड यूज कर लिया, एंड स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम, इसके लिए मैं u d यूज कर लेता हूं. सपोज दैट ये क्वेश्चन में गिवन है, सपोज दैट ये क्वेश्चन में गिवन है और आपको फाइंड आउट करने को बोल रहा है, फाइंड स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, that is u equal to question mark, and speed of current of river यानी स्ट्रीम. इसको अगर मैं v लेता हूं तो ये फाइंड आउट करने को बोला. पहले केस में कैसा था, उन्होंने ऑलरेडी गिवन, ये गिवन है और ये आपने फाइंड आउट किया. इस बार गिवन डेटा चेंज हो गया तो आपको u और v कैलकुलेट करना है, राइट. तो अप स्ट्रीम का फॉर्मूला क्या लिख के दिया है, ये अप स्ट्रीम का फॉर्मूला है और ये डाउन स्ट्रीम का फॉर्मूला, राइट. तो अप स्ट्रीम का फॉर्मूला u माइनस v एंड डाउन स्ट्रीम का फॉर्मूला दैट इज u प्लस v. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u और v, दोनों को आप ऐड कर लो, दोनों को ऐड करके देखो क्या आता है. तो u अप स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट एंड डाउन स्प्रिंट, दोनों को ऐड किया तो यहाँ पे v और v कैंसिल होगा, दैट इज 2u. देन फाइनली फॉर्मूला ऑफ u इज नथिंग बट अप स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट डिवाइड बाय 2 इज नथिंग बट फॉर्मूला ऑफ u. एंड व्हाट इज u, u इज द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, एंड स्पीड ऑफ रिवर क्या आएगा. अभी दोनों को आपने ऐड किया, अभी सब्ट्रैक्ट करके देखो, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, u अप स्ट्रीम वेलोसिटी माइनस
u डाउनस्ट्रीम, दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो u और u कैंसिल होगा, दैट इज -2v. तो फाइनली v इज नथिंग बट डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम डिवाइड बाय 2. अंडरस्टूड? तो ये v क्या है? v इज द स्पीड ऑफ वाटर, v इज द स्पीड ऑफ वाटर या फिर करंट ऑफ रिवर, कुछ भी क्वेश्चन में बोल सकता है. तो होप सो कि आपको ये कंसेप्ट समझा रहेगा. इसको भी आप नोट डाउन कर लेंगे एंड देन फिर इसके बाद हम लोग सीधा एग्जांपल पे अटैक करते हैं. Yes, right from here. Problem based on boat and river. Okay, so in first question, given data is speed of boat in still water is u, and speed of stream or current of river is nothing but v. Then you have to find the value of speed of boat in upstream is nothing but u minus v, and speed of boat in downstream is nothing but u plus v. Downstream मतलब रिवर के वेलोसिटी के साथ अगर मूव कर रही है बोट, ऐसे केस में फॉर्मूला में एडिशन होगा यानी u प्लस v, और ये तो आपको कॉमन सेंस से समझ में भी आ रहा होगा. एंड अपोजिट टू द रिवर डायरेक्शन अगर मूव करेंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. ओके, okay, so let's discuss another concept related to this one, speed. If a person, आप साथ में नोट डाउन भी कर लो. Traveling between 2 points, कंसेप्ट क्या हो बताता हूँ. सपोज दैट ये 2 पॉइंट है ए और बी. तो ये ए और बी के बीच में व्हाटएवर जो भी डिस्टेंस है डी, ये गिवन नहीं है, ये आपको फाइंड आउट करना है. सो अगर सपोज दैट उसने स्पीड नॉर्मल स्पीड से एक्सीड किया तो उसको कम टाइम लगेगा इधर पहुंचने के लिए. और अगर उसके डेली लाइफ का जो स्पीड है, सपोज दैट वो होम टू ऑफिस का ट्रैवलिंग है उसका एवरीडे, ठीक है. तो सपोज दैट किसी दिन उसने स्पीड को इंक्रीज कर दिया तो जल्दी पहुंच गया ऑफिस, और किसी दिन स्पीड को उसने कम कर दिया तो लेट पहुंचा ऑफिस. ऐसे सिचुएशन में क्या डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा वो हम लोग कैलकुलेट करने का ट्राई करें. तो ये है कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. अब फॉर्मूला क्या है वो भी मैं लिख देता हूं. ओके, सो नेक्स्ट इज दिस TL लिखता हूं मैं. TL इज नथिंग बट लेट टाइम और लेट traveling at a speed of, इसको मैं UL लिखता हूं, किलोमीटर पर आवर. एंड अभी टाइम लिया उसने T अर्ली पहुंच गया, एंड ऐसे सिचुएशन में उसने वेलोसिटी एट अ स्पीड ऑफ UE, E फॉर अर्ली, किलोमीटर पर आवर respectively. So what is the formula of distance? So D equal to U late into U early speed into late time plus early time divide difference between them, that is U early minus U late speed. So this is the formula.
Yes, note down this formula. Okay, so now let's see the some best example based on all the concept. First of all, note down this formula. So let's see practice problem based on all the concept. जितना भी concept मैंने बताया उसके ऊपर 1 by 1 numerical solve कर. Yes, देखते जाओ. So now first question. ऑलरेडी आपने नोट डाउन किया है, तो अगर कोई फार्मूला अगर मैं आपको पूछता हूं तो आप अपने नोटबुक से फार्मूला बताएंगे. A car can cover 90 किलोमीटर in 3 hours. ओके, तो यहां से आपको एक स्पीड पता चल जाएगा, कार का स्पीड. तो पहले कार का स्पीड बताओ. तो स्पीड ऑफ कार, that is the distance covered by car, 90 kilometer divided by 3 hours. So finally that is 30 kilometer per hour. Understood? Now question, if it is speed is increased by 15, तो 15 से अगर उसने स्पीड को इंक्रीज किया, then find the time taken by the to cover the distance. तो डिस्टेंस अभी भी सेम है, अभी टाइम कैलकुलेट करना है. टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस सेम है बट स्पीड चेंज हो गया क्योंकि उसने 15 से इंक्रीज किया है. पहले उसका 30 था और 15 ऐड कर लिया. तो फाइनली दैट इज 90 अपॉन 45. यस, व्हाट इज द टाइम? 2 hours. 2 hours. Understood? Any doubt? No, Okay, so Most- let's sorry. Nothing. Okay. Tell me. Sir, I understood. Okay. So now next problem. Ashok covered a certain distance in a certain speed. So suppose that the certain distance is d. ये भी मालूम नहीं है और उसका स्पीड भी नहीं मालूम और नहीं टाइम मालूम, कुछ भी नहीं मालूम. बट आगे क्वेश्चन में बोला है इफ हिज स्पीड वाज 20% मोर, देन टाइम टेक 10 मिनट्स लेस. अगर उसने स्पीड को इंक्रीज करके 20% इंक्रीज कर दिया, जो टाइम है, अब यहां से टाइम का फॉर्मूला क्या आएगा? यस, टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी कि d अपॉन u. बट अभी उसने डिस्टेंस तो सेम है बट उसने वेलोसिटी इंक्रीज कर दिया, तो टाइम कितना इंक्रीज और डिक्रीज हो गया? 10. ये समझ रहा है? तो पहले तो वेलोसिटी निकालते हैं उसका, 20% इंक्रीज करने के बाद वेलोसिटी कितना होगा. तो स्पीड आफ्टर 20% इंक्रीज, देन तो पहले उसका वेलोसिटी u और u का उसने 20% इंक्रीज किया यानी 20% ऑफ u. So that is u plus 20 u divided by 100. Finally 120 u divided by 100. Is it clear? इसमें कोई डाउट है? तो उसका सर नहीं समझा. क्वेश्चन में लिखा है उसका, देखो कुछ तो स्पीड रहेगा स्टार्ट में, u वो भी गिवन नहीं है, लेकिन अभी उसका जो एग्जिस्टिंग स्पीड है, सपोज दैट आप कार ड्राइव कर रहे हैं और आप एक पर्टिकुलर स्पीड से जा रहे हैं, अचानक से आपने कार को एक्सेलरेट किया और आपका स्पीड इंक्रीज हो गया. कितना परसेंट इंक्रीज हो गया? उसने बताया 20% आपके एग्जिस्टिंग स्पीड का. तो आपका एग्जिस्टिंग स्पीड u है और आपने एक्सेलरेट कर दिया, तो आपका जो स्पीड अभी स्पीडोमीटर में दिखा रहा है वो ओरिजिनल स्पीड से 20% इंक्रीज है. ये समझ में आ रहा है ये सेंटेंस? u प्लस 20% ऑफ u आफ्टर 20% इंक्रीज करने के बाद. Yes, sir. ये समझ, अभी वो क्लियर बोल रहा है ना कि उसे इंक्रीज द स्पीड 20%. 20% किसका? ओरिजिनल स्पीड का. सपोज आप स्टार्ट में 40 के स्पीड से जा रहे हैं, राइट, और आप अचानक से आपने 50% कर दिया, 50 स्पीड कर दिया, अभी 40 से 50. तो आप मुझे बता सकते हो कितना आपने इंक्रीज किया? कितना इंक्रीज कर दिया? 10.
10 का इंक्रीमेंट किया ना स्पीड में, वही 10 यहाँ 20% के फॉर्म में दिया, अंडरस्टूड। तो 40 प्लस 10 करेंगे तो आंसर आएगा ना 50। तो ये 10 के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि 10 की जगह उसने 20 लिखा हुआ है, दैट्स इट। तो ये 20% ऑफ द ओरिजिनल स्पीड से उसने इंक्रीज कर दिया। तो फाइनली टोटल स्पीड है u प्लस 20% ऑफ u। परसेंटेज को कैलकुलेट करता है 20/100, फाइनली ये उसका स्पीड हो गया। इसमें u अभी ओरिजिनल स्पीड कितना है वो दिया नहीं है क्वेश्चन, बट एक अभी करंट स्पीड इज व्हाट 120 u अपॉन 100 एंड ओरिजिनल स्पीड कितना था u, इंक्रीज करने के बाद कितना हो गया, दैट इज 120 u अपॉन 100, उससे ज्यादा हो गया, राइट। अब इसके लिए टाइम कितना ले रहे हो, ओरिजिनल टाइम से 10 मिनट्स लेस। ओरिजिनल टाइम t है, उससे 10 मिनट लेस टाइम उसको लगेगा अगर आप उसने सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए ये वाला स्पीड यूज किया, आई मीन 120 u/100। ये समझ में आया? देखो फॉर्मूला टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी वही यूज किया है, बट टाइम की जगह मैंने t-10 यूज किया, बिकॉज अगर वो नॉर्मल स्पीड से चलता तो t टाइम लेता, बट उसने 20% इंक्रीज कर दिया तो उसको वहां पर डेस्टिनेशन पहुंचने के लिए 10 मिनट्स लेस लग रहा है, दैट मींस t-10 मिनट लग रहा है टोटल, अंडरस्टूड। बट ये 10 मिनट दिया हुआ है तो हम लोग 10 बाई उसको 60 करेंगे, अगर टोटल क्वेश्चन हम लोग किलोमीटर में सॉल्व कर रहे हैं तो, ठीक है, किलोमीटर पर आवर, तो इसको हमने आवर में कन्वर्ट कर दिया 10/60। ये पूरा समझ में आया आपको कैलकुलेशन स्टूडेंट्स? सर ये नहीं पता चला इज इक्वल टू 120 u/100 कैसे हुआ। ये 120 अपॉन u ये कहां से आया नहीं पता चला। यस ये तो सीधा सीधा इसको ऐड किया ना मैंने, इसका आगे का सिंप्लीफिकेशन है u प्लस 20 u अपॉन 100, इसमें आप इधर 1 लिख के एलसीएम लेंगे तो ये आंसर आएगा। आप लोग प्रॉपर वे में डाउट पूछो तो मैं बताऊंगा ना, क्या अभी भी समझा या नहीं समझा बताओ। सर नहीं समझा। ठीक है, ये जो मैंने यहाँ पे डेटा लिखा है डी टी यू, ये सब के बारे में पहले बता दो। ये यू क्या लिखा है क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यू? चलो मैं वापस स्टार्ट से देखता हूँ। क्वेश्चन में रीड करते क्वेश्चन, अशोक कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस, सर्टेन डिस्टेंस तो डिस्टेंस गिवन नहीं है, द सर्टेन डिस्टेंस इज डी। ये जो मैंने डी लिखा है डी इज नथिंग बट वो सर्टेन डिस्टेंस जो क्वेश्चन में बोल रहा है। ये क्लियर है, क्योंकि वो डिस्टेंस पता नहीं है कितना डिस्टेंस कवर करने वाला है, एंड सर्टेन स्पीड भी नहीं दिया है, तो स्पीड को भी हमने कितना ले लिया, दैट इज टी। आप जस्ट रिज्यूम करो कि सपोज दैट आप वन पॉइंट आप खुद जर्नी कर रहे हो, ठीक है, तो पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ये सपोज दैट आप रिज्यूम करो कि आपने ये डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए u वेलोसिटी u स्पीड यूज किया, ये जो भी डिस्टेंस है इसको ट्रैवल करने के लिए आपने कितना स्पीड यूज किया u, और आपको ये पूरा ट्रैवलिंग का जो टाइम है वो दैट इज d अपॉन u। अगर आपको फिक्स एग्जांपल लेके देना है तो सपोज दैट आप एक डिस्टेंस है 10 किलोमीटर का, राइट, और आपने स्पीड लिया 2 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से आप चल रहे हैं, तो टोटल टाइम कितना लगेगा बता सकते हैं? 5. हाँ 10/2 दैट इज 5। तो अभी मुझे ये 10 की जगह अगर मैं d लिखता हूं और 2 की जगह u लिखता हूं तो टाइम का फॉर्मूला क्या आएगा, d/u आएगा, वही तो लिखा मैंने इधर। ये समझा फर्स्ट स्टेप? ये t का फॉर्मूला समझ में आएगा नहीं आप लोग, पहले यहां तक बोलो। हाँ सर। यस, यस सर। ये हो गया, ये स्टडी की जर्नी हो गई, ये कल की जर्नी हो गई। अब आज उसने क्या किया, सेम जर्नी, वापस वो होम टू ऑफिस जा रहा है, लेकिन आज उसने क्या किया, कल के स्पीड से 20% स्पीड इंक्रीज करके ले रहा है, ठीक है। सपोज वो घर से लेट निकला रहेगा,
सेम डिस्टेंस, बट आज उसने जो कल जो स्पीड यूज किया था उससे कितना परसेंट एक्स्ट्रा स्पीड लेके चल रहा है? 20%। ये समझ में आ रहा है? ये यस्टरडे की बात है और ये टुडे। बट आज का स्पीड कितना है? 20% एक्स्ट्रा, यानी कि जो कल स्पीड उसने यूज किया था 2, वो उससे ज्यादा यूज कर रहा है। कितना? 20% ऑफ 2, यानी कल के स्पीड से 20% एक्स्ट्रा यूज कर रहा है। तो 2 की जगह मैं यहाँ पे लिखता हूँ u, और u ये यस्टरडे का स्पीड है, आज का स्पीड कल के स्पीड में वो 20% ऑफ द यस्टरडे स्पीड, तो 20% ऑफ कल वाला स्पीड। ये समझ, ये आज का स्पीड है, टुडे का स्पीड, स्पीड ऑफ टुडे। अंडरस्टूड? यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं आप लोग को? Yes, sir. Yes, sir. सब लोग क्लियर हुआ? तो ये कैलकुलेट करके देखते हैं कितना आंसर आता है। ये परसेंटेज को कैलकुलेट करेंगे फ्रैक्शन में, तो क्या लिखते हैं? 20/100 लिखेंगे ना परसेंटेज की जगह पे। ये क्लियर हुआ? इसी को मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। अब इसमें आप u कॉमन ले लो, तो 1 + 20/100। अब जरा इसका कैलकुलेशन बता सकते हैं जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है? 120/100. हाँ, तो 120/100, ये u भी साइड में यहाँ लिख देता हूँ। अभी ठीक है? तो ये कौन सा स्पीड है? ये आज का स्पीड है। क्लियर हुआ? ये कल का स्पीड था, u कल का स्पीड है। ये 120/100 u ये आज का स्पीड है। और आज कितना टाइम लिया उसने? आज उसको कितना टाइम लग रहा है जाने के लिए ऑफिस टू होम टू ऑफिस? क्वेश्चन रीड करके बताओ। 10 मिनट्स लेस, यानी कल उसने जो टाइम लिया था, कल का टाइम कितना था उसका बताओ? d/u। क्लियर हुआ ये? Yes. तो आज टाइम कितना लेगा? d/u में से 10 माइनस करेंगे कि नहीं? हाँ, तो आज का टाइम बताओ। मतलब अगर आज वो होम टू ऑफिस जा रहे हैं तो टाइम कितना ले रहे हैं? बोलो क्या लिखूं यहाँ पे? ये मैं आपको ty लगा देता हूँ, y फॉर यस्टरडे, और यहाँ मैं t लगाता हूँ, टाइम टुडे। बोलो, तो यस्टरडे टाइम से कम टाइम लिया कितना? 10 और यस्टरडे टाइम का वैल्यू क्या है? t/. यस, ठीक है। ये समझ में आया आपको? Yes. ये इक्वेशन में कहीं कोई डाउट? अभी मुझे यहाँ पे टुडे टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड से बताओ। तो डिस्टेंस चेंज हुआ है क्या? नहीं ना। कल जो डिस्टेंस था ऑफिस टू होम, वही डिस्टेंस आज भी है ऑफिस टू होम। तो डिस्टेंस तो अभी भी आपका d है, लेकिन आज का जो स्पीड है वो बदल के कितना हो गया? 120u/100। तो फाइनली 100d/120u, ये आज का टाइम का वैल्यू, यानी टुडे टाइम। और ये टुडे और यस्टरडे टाइम में एक मैंने रिलेशन बना के रखा है। अब ये पूरे रिलेशन में आप आज के टाइम का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, यानी कि 100d/u माइनस यस्टरडे टाइम। बोलो एक्चुअली कैलकुलेट क्या करना है वो देख लो, उसके अकॉर्डिंग हम लोग पैरामीटर चेंज करेंगे। फाइंड द टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस। अंडरस्टूड? यानी उसको टी कैलकुलेट करना है बेसिकली, देखा जाए। ये क्लियर हुआ? Yes. उसको फाइनली टी कैलकुलेट करना है कि कल कितना टाइम लिया था उसने जर्नी तय करने के लिए, टोटल कवर करने के लिए। ये वाला टी उसको कैलकुलेट करना है। एनी डाउट? No, sir. अभी समझा कि अभी भी डाउट है? बोलो। तो यहाँ पे हमने ये वैल्यू लिख दिया, दैट इज 120, ये वाला वैल्यू। और यस्टरडे टाइम का वैल्यू कितना है? d/u इक्वल टू -10। ये 10 मिनट है तो उसको मैं डिवाइड बाय 60 करूंगा, बिकॉज आवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। अभी ये पूरे में से आप सिंप्लीफाई करके ये वाला जो अब एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ये d/u को मैं लेफ्ट में लेके जा रहा हूँ। तो 100d/120u माइनस d/u इक्वल टू -10/60। अब यहाँ से आप d कॉमन ले लो, d/u कॉमन लेंगे, सो दैट इज 100/120 माइनस 1 इक्वल टू -10/60। तो फाइनली d/u इक्वल टू -20/120, दिस इज इक्वल टू -10/60, राइट? अब इसको आप कैंसिल कर सकते हो। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d/u?
यस, तो d बाई u इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 120 उधर चला गया, ये 10 डिवाइड बाई 20 इंटू कितना आएगा बोलो, ये कैलकुलेशन बराबर हुआ? करेक्ट। कहीं कोई डाउट है तो पूछो आप लोग। कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट। ठीक है, ये प्रॉब्लम थोड़ा लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड भी था, तो लेट्स सी द अनदर प्रॉब्लम। थोड़ा इजी वाला करते हैं, चाहिए तो आप उस पे आते हैं। आपको एक्चुअली कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ नहीं अभी तक। मैंने फर्स्ट स्टेज में इजी क्वेश्चन लिया और सेकंड स्टेज में थोड़ा सा डिफिकल्ट ले लिया। ये क्वेश्चन आपको इजीली समझ जाएगा। पहले आपको कॉन्फिडेंट कर देता हूँ कंसेप्ट बता के, एंड देन उस प्रॉब्लम पे वापस कम बैक करता हूँ। चलो, ये वाला प्रॉब्लम होप तो आप बताएंगे। थोड़ा कार zoom out कवर्ड अ कर दो सर्टेन थोड़ा। डिस्टेंस इन 90 किलोमीटर, राइट? ये इजी प्रॉब्लम है, मैंने डायरेक्टली थोड़ा हार्ड प्रॉब्लम ले लिया था, उसको लास्ट में डिस्कस कर। ओके, अ कार कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट 90 किलोमीटर पर आवर। तो सपोज दैट ये मैंने एक पॉइंट बनाया, फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट, यहां से यहां तक उसने जर्नी, ये जर्नी कवर कितने स्पीड से किया उसने बोलो? दैट इज 90 किलोमीटर पर आवर। यहां तक कंफर्टेबल है? फिर बाद में वो कम बैक हो रहा है, यहां से यहां तक पीछे की तरफ वापस आ गया सेम डिस्टेंस पे, और अभी उसने डिस्टेंस कितना लिया? ये जाने का डिस्टेंस है, और ये कम बैक रिटर्न आ गया, उसका डिस्टेंस स्पीड कितना दिया? दैट इज 60 किलोमीटर पर आवर। यहां तक क्लियर है? फाइंड द एवरेज, एवरेज स्पीड पूछा है, तो मैंने पहले मुझे एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बताओ। यस, टेल मी द हाँ, टोटल टोटल डिस्टेंस। डिस्टेंस कवर। यस, तो टोटल, सपोज दैट ये डिस्टेंस को मैं x एज्यूम कर रहा हूँ, कितना एज्यूम कर रहा हूँ बोलो? x, राइट? तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? इधर फर्स्ट जर्नी x एंड रिटर्न आने का x, तो टोटल डिस्टेंस हम बता सकते हैं टोटल कितना डिस्टेंस हुआ? यस, टेल मी। 150 किलोमीटर पर आवर। मैं बोल रहा हूँ a टू b का अगर x डिस्टेंस है और b टू a का x है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? ठीक है, 2x लिख सकते हैं, इसमें कंफर्टेबल है आप लोग? हाँ जी, हाँ जी। तो यही तो Yes, आपसे sir. पूछ, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था मैं। चलो अब टाइम निकालते हैं, जाने का टाइम बताओ। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन Speed. स्पीड। तो डिस्टेंस x है और स्पीड 90 है, आने का टाइम बताओ। डिस्टेंस अभी भी x है बट स्पीड 60 है, ये कंफर्टेबल है आप लोग यहाँ पे? Yes, sir. टोटल टाइम बताओ, x अपॉन 90 प्लस x अपॉन 60, ये कंफर्टेबल है? यस, टेल मी। Yes, Yes, sir. sir. टोटल डिस्टेंस कितना बताया आपने? 2x बताया कि नहीं? 2x. तो ये फॉर्मूला में टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम सब्स्टिट्यूट करो। टोटल डिस्टेंस 2x एंड टोटल टाइम इज x अपॉन 90 प्लस x अपॉन 60। ये समझ में आया ये पूरा कैलकुलेशन? Yes, sir. हाँ, 2x, इधर डिनोमिनेटर में x कॉमन ले लेंगे और इसका एलसीएम लोगे तो 60 प्लस 90 डिवाइड बाई 60 इंटू 90। ये कैलकुलेशन समझ में आया? Yes, sir. x s कैंसिल हो गया, ये 60 और 90 न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो 2 इंटू 60 इंटू 90 डिवाइड बाई 60 प्लस 90। इसको डायरेक्टली कैलकुलेट करके आंसर बता सकते हैं आप लोग? नीचे वाले को ऐड करेंगे कितना आएगा? 150. 150. तो अभी कैलकुलेशन कैंसिल करके बोलो टोटल आंसर। Yes, I am waiting from your side. 72. Very good. So finally, average speed is 72 kilometer per hour. ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? Yes. Yes, sir. ठीक है, चलो नेक्स्ट। अभी मैंने आपको कंसेप्ट लिखने को बोला था, उसमें ट्रेन और स्टेशनरी पॉइंट, राइट? तो ये वही क्वेश्चन है।
फाइंड द टाइम टेकन बाय अ 200 मीटर लॉन्ग ट्रेन. ट्रेन का लेंथ कितना दिया है? यस, टेल मी लेंथ ऑफ ट्रेन इज व्हाट? 200. 100. एंड स्पीड कितना है उसका? 36 किलोमीटर पर आवर. 36. बट ये डिस्टेंस मीटर में दिया है और ये किलोमीटर में दिया है, तो यू हैव टू कन्वर्ट इनटू 5 मीटर पर आवर. 18 तो ना. 36 इंटू 5/18 कर देंगे तो दैट इज मीटर पर सेकेंड में कन्वर्जन हो गया. सो दैट विल बी 10 मीटर पर सेकेंड. अंडरस्टूड? ये क्लियर हुआ कैलकुलेशन? यस. यस. तो टाइम का फॉर्मूला क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, राइट? इस केस में डिस्टेंस कितना लेंगे मैंने लिख के दिया था आपको. लेंथ ऑफ ट्रेन आपको ऑलरेडी केसेस बना के दिए है. एंड स्पीड ऑफ ट्रेन. यस, टेल मी. लेंथ ऑफ ट्रेन 20 इज meter per 200 and that is answer is 20 20 सेकेंड. 20 सेकेंड. ये क्वेश्चन क्लियर हुआ आप लोगों को? yes ये sir. प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर एक बॉय खड़ा है और एक ट्रेन आ रही है, राइट? और ट्रेन का लेंथ 200 है. तो ये ट्रेन इसको क्रॉस करने के लिए टोटल कितना सेकंड लेने वाली है? 20 सेकंड. ज्यादा डेप्थ में जाना नहीं है, मैंने आपको ऑलरेडी सब फॉर्मूला बना के दिए. अंडरस्टूड? एनी डाउट? ये प्रॉब्लम समझा कि नहीं आपको? हेलो? yes sir. yes sir. चलो नेक्स्ट. फाइंड द टाइम टेकन बाय ट्रेन 100 मीटर लॉन्ग ट्रेवलिंग एट a speed 63 across a platform this one. बोलो टाइम का फॉर्मूला. प्लेटफॉर्म और ट्रेन का केस. लेंथ ऑफ ट्रेन. यस, टेल मी द फॉर्मूला ऑफ टाइम इन केस ऑफ प्लेटफॉर्म एंड ट्रेन. लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ Length of platform. डिवाइड बाई क्या स्पीड. लिख के फॉर्मूला लिया आपने? स्पीड ऑफ ट्रेन. Train. So tell me the answer. 100 plus plus 250 50 divided by divided by 63 into but वो 5 किलोमीटर में दिया है, तो 5 अब into इसको 5 by कन्वर्ट 18. करना पड़ेगा 5/18 से मल्टीप्लाई करें. अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे. न्यूमरेटर में क्या हो गया? 350. इज इट क्लियर? ये 18 को न्यूमरेटर में ला सकते हैं एंड डिवाइड बाय 63 into 5. सो टेल मी द कैलकुलेशन. व्हाट इज द फाइनल आंसर? यस, आई एम वेटिंग फ्रॉम योर साइड. यस, कैलकुलेट नहीं हो पा रहा है ये. 20 sir. 20. 20 सेकंड. वेरी गुड. तो अभी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा होगा आप लोगों को. नेक्स्ट, फाइंड द लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म. इसमें सेम क्वेश्चन है बट लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म पूछा है. पहले तो आप फॉर्मूला लिखो. टाइम इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म डिवाइड बाय यस व्हाट इज द फॉर्मूला? स्पीड ऑफ ट्रेन. सेम फॉर्मूला यूज किया. टाइम क्वेश्चन में दिया है 40 सेकेंड. देख लो. स्पीड को क्वेश्चन में कितना दिया है? टोटल 45, बट मीटर में नहीं दिया है, तो हम लोग मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 कर लेंगे. लेंथ ऑफ ट्रेन इज व्हाट? 400 एंड लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म मालूम नहीं है, तो उसको कुछ एज्यूम कर लो. पी लिख देता हूं, चलेगा? अब आपको ये पी कैलकुलेट करना है, तो ये पूरा सिंप्लीफिकेशन बताओ. ये पूरा ब्रैकेट को मैं इधर मल्टीप्लाई करता हूं. सो आप नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे? बोलो. 40 into 45 into 5 divided by 18. This is equal to 400 plus P. P is nothing but length of platform.
LP लिख दो, बेटर रहेगा, राइट। सो व्हाट इज द लॉ ऑफ LP? पहले इसको सॉल्व करके बताएंगे आप ये वाला कैलकुलेशन। यस, टेल मी द लेफ्ट साइड वाला कैलकुलेशन। So P will be 100 क्योंकि 40 into 45 into 5 divided by 18. What is the answer? 500. 500. Very good. And this is equal to 400 plus length of platform. So what is the 500 length of platform? 500 minus 400. 500 by 400. What is the answer? 100. Understood? Yes, sir. Yes. Very good. Next question. Find the time taken by a train 175 meter long. तो 1 by 1 जाते हैं। Length of train 175 and उसका स्पीड कितना है? Speed of train, T for train, that is 54 into 5 by 18. This is equal to 15 meter per second. Is it clear? Yes, sir. Another train, इसका लेंथ कितना है? इसको ट्रेन 1, length of train 2, that is 75 meter. Is it clear? और उसका स्पीड कितना दिया है? ट्रेन 2 36 into 5 by 18. Answer is 10 meter per second. Any doubt? No, sir. क्वेश्चन में बोला है फाइंड द टाइम टेकन। तो इसमें देयर आर टू ऑब्जेक्ट। जब टू ऑब्जेक्ट आता है तो वहां पे हम लोग रिलेटिव स्पीड यूज करते हैं। तो टाइम का फॉर्मूला इज डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव। और इस केस में डिस्टेंस क्या लेंगे हम लोग, बोलो? 175 plus yes, 75. length of train 1 plus length of train 2 divided by relative स्पीड। अब आपको मुझे यहाँ पे रिलेटिव स्पीड का वैल्यू बताना है। दोनों स्पीड को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, डिपेंड की बोथ आर इन सेम डायरेक्शन या बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन। Same direction. क्वेश्चन में लिखा है क्या सेम डायरेक्शन? Overtake. हाँ, ओवरटेक वाला सेंटेंस यूज किया, दैट मींस बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। एंड सेम डायरेक्शन में आप क्या करोगे? ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे? Yes. ऑलरेडी मैंने आपको लिख के दिया है, तो आप नोटबुक से निकाल के बताओ, डायरेक्टली ऐसा ओरली मत रिप्लाई करो प्लीज। ओके, if both two objects move in same direction, then what is the formula of the relative velocity? Addition of both or subtraction of both? Addition. Please check your notebook and then reply na. Subtraction, sir. Yes, देखो आप जो सोचते हो ऐसा नहीं होता है, इसलिए आप रिप्लाई वहीं से करो जहां मैंने इसलिए आपको एडवांस में सब लिख के दिया है। अब किसमें से किसको माइनस करना है वो भी मैंने फॉर्मूला लिखते वक्त बताया था। बड़े वाले में से छोटे को माइनस कर, 50 minus 10, व्हाट इज आंसर? 5 मीटर पर सेकेंड। ये आपको यहाँ पे फॉर्मूले में यूज करना है। लेंथ ऑफ ट्रेन 175 plus 75 divided by 5. टेल मी द फाइनल आंसर। अब तो बता सकते हैं। 20 190. नो, दिस इज रॉन्ग आंसर। ऊपर वाले का एडिशन कितना आएगा? 175 plus 75, दैट इज 250 ना, डिवाइड बाय 5। 5 का टेबल पढ़ेंगे तो यहाँ 5 5 और एक 0, आंसर इज 50 सेकेंड। कंसेप्ट के साथ कैलकुलेशन भी इंपॉर्टेंट है। कंसेप्ट आगे बट कैलकुलेशन ही नहीं मैच हुआ तो फिर ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ओके, होप सो आपको ये क्वेश्चन समझा रहेगा। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes. यस। तो आप रिलेट दोनों सेम डायरेक्शन में है तो सेम वाली फीलिंग करके ऐड नहीं करना है, ठीक है? जो आप सोचते हो वैसा नहीं होता है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इधर भी ओवरटेक वाला ही क्वेश्चन है। ओके, बट इसमें एक ट्रेन और एक पर्सन है, वो भी मैंने आपको लिख के दिया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, लेंथ ऑफ ट्रेन कितना है? लेंथ पूछा है, लेंथ ऑफ ट्रेन, क्वेश्चन मार्क, फाइंड लेंथ एंड स्पीड की।
A train overtakes 2 persons. इसमें 2 बार क्वेश्चन आएगा, थोड़ा डिफिकल्ट होगा, मैं अभी नहीं बताऊं, क्योंकि अभी आपको डिफिकल्ट बताया तो जो भी सीखा है वो सब खत्म हो गया। बेटर है कि 1 by 1 जाए। हाँ, यस, 2 ट्रेन, पहले आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप करके देता हूं एंड देन वो प्रॉब्लम को। 2 ट्रेन्स रनिंग एट 36 किलोमीटर पर आवर एंड 45, दोनों का स्पीड दिया है, तो पहले किलोमीटर से कन्वर्ट करेंगे। स्पीड ऑफ ट्रेन 1 36 into 5 by 18 इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। यहां तक कंफर्टेबल है आप लोग? Yes, sir. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वाला 45 है, ये 5 by 18 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आपको समझ रहा है स्टूडेंट्स? Yes, 5 sir. by 18 से मल्टीप्लाई करने का पर्पस क्या है? Meter per second. यस, वेरी गुड। तो दोनों के स्पीड मिल गए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करेंगे हम लोग। क्रॉस ईच अदर इन 20 सेकेंड, तो टाइम भी दिया है इस बार, टाइम इक्वल टू 20 सेकेंड इन द अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, टेल मी? Add होता. हाँ, टाइम का फॉर्मूला लिखते हैं, फिर उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें। ओके, तो केस 1 इन अपोजिट डायरेक्शन, देन टेल मी द फॉर्मूला ऑफ टाइम। यस, क्या होगा फॉर्मूला? लेंथ ऑफ ट्रेन डिवाइड बाय रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड में ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है? Add. हाँ, ये केस 1 पे हम लोग डील कर रहे हैं, इसमें ऐड करके लिखेंगे। टेल मी, टी का फॉर्मूला 40 सेकेंड, नॉट 40 सेकेंड, दैट इज 20 सेकेंड। ओके, तो टी की जगह 20 सब्स्टिट्यूट किया मैंने यहाँ पर। लेंथ ऑफ ट्रेन मालूम नहीं है, एज इट इज रहने दो, बट रिलेटिव स्पीड में आप क्या बता रहे हैं, दोनों को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे अपोजिट डायरेक्शन के लिए? Add करेंगे. ऐड। तो इसमें एक इक्वेशन बना के रखते हैं, लेंथ ऑफ ट्रेन 1 लेंथ ऑफ ट्रेन 2 इक्वल टू 20 इंटू, इसका एडिशन करोगे तो कितना आएगा? 22.5, राइट? अब सेकेंड केस पे आते हैं, केस 2, व्हेन द ट्रेन्स रन इन सेम डायरेक्शन, तो टोटल टाइम कितना लगा अब इस बार? अभी सेम डायरेक्शन का फॉर्मूला, तो टाइम इक्वल टू वंस अगेन लेंथ ऑफ ट्रेन 1 लेंथ ऑफ ट्रेन 2 डिवाइड बाय व्हाट? रिलेटिव स्पीड। इस बार रिलेटिव स्पीड क्या करेंगे, ऐड या सब्ट्रैक्ट? Subtract. तो 12.5 माइनस 10, और टी का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है इस दिस टाइम? 20. दिस टाइम इज टी इज नथिंग बट Sorry. 48, करेक्ट? चेक करो कितना दिया है, 48 ही है ना इस बार? 40. 48। हाँ, तो यहाँ पे टी का वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूट करना है 48, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 48, टी की जगह पे लिखा, और ये ट्रेन का लेंथ तो मालूम ही नहीं है, ऐसे ही रखते हैं, डिवाइड बाई कितना आएगा डिनोमिनेटर? ठीक है, इसको ऐसे लिख देता हूँ। बोलो, यहां तक कंफर्टेबल है आप लोग? Yes, sir. ये पहला वाला वापस एक बार रीड करते हैं। 2 ट्रेन्स रनिंग एट 36 एंड दिस ओके एंड क्रॉस ईच अदर एट 20 सेकेंड, ये क्लियर है फर्स्ट केस। सेकेंड केस में उसने कुछ ऐड पर्सन ऐड किया है। व्हेन द ट्रेन रन इन द सेम डायरेक्शन, अ पर्सन इन द फास्टर ट्रेन में जो बंदा बैठा है वो देख रहा है कि स्लोअर ट्रेन का 48 सेकेंड लग रहा है। तो यहाँ पे दोनों ट्रेन का लेंथ नहीं लेंगे हम लोग, क्योंकि इसमें आपको एक ट्रेन और एक मूविंग ऑब्जेक्ट का केस यूज करना पड़ेगा। ये क्लियर हो रहा है क्या सेकंड पार्ट में? बिकॉज वो पर्सन को क्रॉस कर रहा है, सेकंड में उसने पर्सन को क्रॉस करने के लिए 48 लिया है, तो यहाँ लेंथ ऑफ पर्सन तो लिखेंगे नहीं। अब इन दोनों में जो स्लोअर ट्रेन का स्पीड है, लेंथ है, वो लिखना है। तो दोनों में से एक हमने ट्रेन 1 लिया है, दैट इज 36 वाले के लिए।
इसका लेंथ हमने, ये आपका स्लोअर ट्रेन है बिकॉज उसका स्पीड कम दिख रहा है आपको, एंड दूसरे वाले का स्पीड ये फास्टर है, तो यहाँ पे हम लोग LT1 यूज करेंगे, तो ये चीज नहीं आएगा, यहाँ पे इतना ही रहेगा। तो अब मुझे यहाँ से डायरेक्टली LT1 का वैल्यू बता सकते हैं आप लोग? इस क्वेश्चन में देयर आर टू कंसेप्ट, टू ट्रेन का भी कंसेप्ट है और ट्रेन और वॉइस का भी कंसेप्ट है, और मैंने दोनों आपको अलग अलग तरीके से लिख के दिया है, ट्रेन एंड वॉइस। तो इसमें फॉर्मूला क्या होता है? ट्रेन का लेंथ डिवाइड बाई रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वॉइस एंड ट्रेन, एंड बोथ आर, अगर सेम डायरेक्शन है तो ऐड करना है, अपोजिट है तो सब्ट्रैक्ट करना है। तो कैन यू एबल टू टेल मी व्हाट इज द लेंथ ऑफ ट्रेन 1? 48, इसका मल्टीप्लिकेशन कितना, ये सब्ट्रैक्ट करके कितना आएगा टोटल? 2.5, जो इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो दैट इज 2.5 होगा। व्हाट इज आंसर? तो दैट इज 120। ये भी सॉल्व करके बताओ, ट्रेन 1 प्लस ट्रेन 2, ये कैलकुलेशन 20 इंटू 22.5 दैट इज 450। तो यहाँ पे एक इक्वेशन बना के हमने रखा है केस 1 और ये केस 2। अब ट्रेन 1 का लेंथ मिल गया तो ट्रेन 2 का लेंथ कितना होगा? यस, ट्रेन 1 और ट्रेन 2 दोनों का लेंथ एडिशन इज द 450, उसमें से एक का 120 है तो दूसरे का लेंथ कितना आएगा? 450 माइनस 120। इज इट क्लियर? 330. तो 330 मीटर। इसमें आपको कोई कंसेप्ट में डाउट है तो पूछो। ठीक है, फर्स्ट केस हमने टू ट्रेन वाला यूज किया है इन अपोजिट डायरेक्शन। सेम केस, सॉरी, जो सेकेंड केस है दैट इज द सेम डायरेक्शन बट वॉइस एंड ट्रेन वाला यूज किया है, जो दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं। क्लियर हुआ? तो दो अलग अलग कंसेप्ट एक क्वेश्चन में अप्लाई होगा। तो होप सो आपको ट्रेन वाले क्वेश्चन समझ में आए रहेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। खत्म भी नहीं कर लिया यार, सीरियसली। रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन। टू ट्रेन्स हैव अ लेंथ ऑफ दिस वन, दोनों का लेंथ दिया है, so note down the length of train 1. Length of train 1 is 300, length of train 2 is 200. Is it clear? Okay, when they run in the same direction, the faster train will take 10 seconds to cross the slower train. तो same direction के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं, case 1 in same direction. What is the formula of time? रिलेटिव स्पीड। और इस बार हम लोग को फॉर्मूला में बोलो, दोनों स्पीड का डिफरेंस लेना है या फिर ऐड करना है, बताओ सेम डायरेक्शन के लिए। Subtract करना. हाँ, तो u1 माइनस u2, राइट? या फिर बेटर है कि मैं वहां पे u1 से बेटर है कि मैं फास्टर एंड स्लोअर यूज करता हूँ, बिकॉज फास्टर माइनस स्लोअर लिखना है, ये तो आपको समझ में आ रहा है। जी सर. तो यहाँ पे मैं फास्टर ट्रेन एंड स्लोअर के लिए F और S यूज करता हूं। इज इट क्लियर? और टोटल टाइम कितना लिया इस केस में? इन दिस केस व्हाट इज द टाइम? Yes, when they run in the same direction, the faster train will be what is time? 100. ये t की जगह हम लोग 100 पुट करेंगे। ओके, ये t की जगह हम लोग यहाँ पे 100 सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। दोनों ट्रेन का लेंथ भी दिया है 300 प्लस 200, तो u फास्टर माइनस u स्लोअर। अब इसको अगर आप कैलकुलेशन ओरिएंटेड परफॉर्म करें तो ये पूरा का पूरा टर्म इधर स्विच हो जाएगा और ये इधर स्विच हो जाएगा, तो दैट इज u फास्टर माइनस u स्लोअर इक्वल टू 500 डिवाइड बाय 100। तो फाइनली u फास्टर माइनस u स्लोअर इज नथिंग बट 5।
This is equation number 1. Any doubt? This is your first case. If any doubt, then ask me. No. Any doubt? Students, any doubt in this concept? No, sir, no. Okay. So go for the next case. When they run in opposite direction, then they will take 20 seconds cross to each other. So that is your case 2. Yes, case 2. In opposite direction. So what is the formula of time? Length of train divided by relative speed. But in this case, what is the value of relative speed in opposite direction? Addition of both the speed or subtraction of both the speed? Opposite Addition. direction के लिए add करना है या subtract Add, करना है? add. So yes, u faster speed plus u slower speed. And in this formula, what is the value of t? In this case, t is nothing but 20 seconds. Train का length अभी भी 300 plus 200 divide by u faster minus u slower. इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये पूरा एक्सप्रेशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे चला जाएगा और 20 इधर नीचे आएगा. You can write faster minus slower. This is equal to 500 divided by 20. So what is the value? Faster plus slower है ना? Sorry, my mistake. So this is equal to, yes, tell me the answer. 25. Oh, sorry, 25. 25, my mistake. 25. Is it clear? This is your second equation. Yes, यहाँ तक कोई डाउट है आप लोगों को? नहीं सर, ठीक है. Students, please tell me yes or no. If any doubt, then ask me. Any doubt? No sir. ये case 1, case 2 दोनों properly समझ में आया आप लोगों को? Yes sir. Yes sir. दोनों इक्वेशन के बेसिस पे स्पीड कैलकुलेट करना है, बिकॉज क्वेश्चन ने बोला है फाइंड द स्पीड ऑफ देम. तो हाउ टू कैलकुलेट? पहले दोनों इक्वेशन को मैं यहाँ लिख देता हूँ. u फास्टर प्लस u स्लोअर, दैट इज 25. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. एंड u फास्टर माइनस u स्लोअर, दिस इज इक्वल टू 5. इक्वेशन नंबर 1 मे बी यही है, चेक करो. यस. So how to find the value of u faster and slower? Just add both the equation. When you add both the equation, this and this cancel, that is 2u of f equal to 30. So finally speed of faster train is the 15. Understood? Any doubt? And how to calculate us? So use just any one equation. Suppose that I will use the first equation from equation number 2. So u faster plus u slower equal to 15. 25. Right? U faster is nothing but 15, u slower malum nahi, and finally u slower equal to 25 minus 15. Finally answer will be 10 meter per second. Understood? Okay. So next question is related to boat problem. So a boat travels 30 kilometer upstream in 5 hours and 10 kilometer in downstream in 10 hours. So what is the speed? Someone is disturbing the class. Please mute yourself. तो upstream का फॉर्मूला क्या है? स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है पहले बताओ. स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. अपस्ट्रीम तो 30 डिवाइड बाय 5 hours, that is 6 kilometer per hour. Any doubt? No sir. And downstream, speed of downstream that time पे वो कितना ट्रैवल कर रहा है डिस्टेंस? That is 100 kilometer divide in 10 hour. Answer will be 10 kilometer per hour. Any doubt? तो आपको अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम दिया है. क्वेश्चन ने पूछा है फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम. तो मैंने आपको ये केस लिख के दिए थे कि अगर आपको स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर निकालना है तो दोनों को ऐड करके आप क्या करेंगे? डिवाइड बाई 2. और अगर आपको स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालना है जिसको मैंने v से रिप्रेजेंट किया है तो डाउन माइनस अप डिवाइड बाई 2 करेंगे. आपको ये फॉर्मूला आपने नोट डाउन किया है ऑलरेडी. So that is 6 plus 10 divided by 2. Answer will be 8, and 10 minus 6 divided by 2. Answer will be 2. Any
doubt? So this is the problem based on boat and river. Okay. So that's all for today. And in this session, I have covered distance and time based problem. तो इससे भी Sir, एग्जाम में आते हैं और क्वेश्चन. ये फिर आप ग्रुप में भेजेंगे ना?